हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स का जो है क्वेश्चन कवर करेंगे वेयर देयर इज सम डिजीजेज इन दी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक देयर कैन बी एनीमिया और प्री एक्लेम्शिया, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल सिंड्रोम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी एनीमिया इन प्रेगनेंसी एंड ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन दी WHO ICMR का जो हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे। तो नॉर्मल ग्रेडिंग इज मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर, माइल्ड इज 10 to 11, 7 to 10 में मॉडरेट एनीमिया, लेस देन 7 इज सीवियर एनीमिया, लेस देन 4 है इट इज़ वेरी सीवियर एनीमिया। एंड कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, it can be during pregnancy or during labor or during prepurium, and also the effect on the baby also. During pregnancy जो anemia में there can be anemia, pregnancy can be complicated in case with the preeclampsia, and infection, angina pectoris, cytopenic dysphagia, atrophic glossitis, heart failure, preterm labor and prematurity. During labor, uterine inertia and postpartum hemorrhage, CHF and shock. During puerperium, puerperal sepsis, subinvolution, poor lactation, puerperal venous thrombosis, pulmonary embolism, poor wound healing and postpartum depression. इफेक्ट ऑन बेबी में IUGR है, हो सकता है प्रीटर्म लेबर, एनीमिया इन इन्फेंसी ड्यू टू दी डिक्रीज्ड आयरन स्टोर, एंड इन सीवियर एनीमिया अंडर दी फीटल decreased fetal oxygen and decreased amniotic fluid volume and intrauterine death can be there. Management of anemia in pregnancy during the labor. So in first stage there will be the patient should be in the bed with position comfortable to her, and position may be if needed. Provision of O2 inhalation should be there, and labor analgesia, that is epidural analgesia if needed, and close monitoring of female, pulse rate, BP, टेम्परेचर, SpO2 ये सब चेक करना है, एंड HS ऑस्कल्टेट करना है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फेलियर। ओरल फ्लूइड जो है मे बी अलाउड, एंड IV फ्लूइड व्हेन नीडेड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 125 ml per hour, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। मिनिमल पेल्विक एग्जामिनेशन करना है एज पॉसिबल, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करनी है। इन सेकेंड स्टेज द प्रोफाइलेक्टिक forceps और जो है ventricular delivery may be done to shorten the duration. In third stage acute management करना है of third stage by oxytocin, like 10 international unit per IM is given following the delivery, and any significant amount of blood loss is compensated by the fresh PRBC transfusion measures are taken using the diuretics. Furosemide 20 milligram IV देना है to avoid volume overload of the heart. Causes of anemia in pregnancy देखेंगे तो there can be physiological cause और pathological cause. And deficiency anemia उसमें can be isolated or combined, like iron deficiency anemia, folic acid deficiency anemia, vitamin B12 and protein deficiency. Hemorrhage में there can be acute hemorrhage or chronic hemorrhage. Acute hemorrhage में following bleeding in early months, and antepartum hemorrhage, hookworm infestation and bleeding hemorrhoids are there. Hereditary में there is thalassemia, sickle cell disease and other hemoglobinopathies, hereditary hemolytic anemia and RBC membrane defects and spherocytosis. Hemolytic disease में there is SLE and HELLP syndrome, autoimmune hemolysis, drug-induced G6PD deficiency, anemia of infection, malaria, kala azar, tuberculosis, and bone marrow insufficiency like hypoplasia or aplasia, and due to radiation and drug and aspirin, endomethacin. Chronic disease में there is renal disease and neoplasm, and hematological malignancies में leukemia, lymphoma.
What is the physiological anemia of pregnancy? So during pregnancy, the maternal plasma volume increases by around 40 to 50%. Maternal RBC's volume increases by 20%, and marked demand of the extra iron, especially in the second half. इसके अलावा रिलेटिव फॉल इन दी हीमोग्लोबिन एंड हीमोटोक्रिट करना है, हीमोडाइलेशन हो जाए, निगेटिव आयरन बैलेंस है, एंड चूँकि इवन एडिक्वेट डाइट कांट प्रोवाइड द आयरन, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो उसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, क्राइटेरिया में लोअर लिमिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी should fulfill the hematological values. Hemoglobin is 10 gram %, RBC is 3.2 million per meter cube, Paxil volume is 32%, peripheral smear showing normal morphology of the RBC with central pallor. Investigation में there is CBC, GBP, iron profile, and there will be decreased serum iron level and increased TIBC level. Diagnostic test for iron deficiency anemia. So serum iron studies like serum ferritin less than 30 microgram per kg हो जाए, TIBC more than 400 microgram per deciliter, percentage saturation less than 10%, serum ferritin less than 30 microgram per liter, confirmatory test, serum bilirubin is normal. Genetic mutation in iron deficiency anemia, serum ferritin most reliable indicator of iron deficiency in the absence of inflammation and chronic disease. Serum ferritin is the main storage protein for iron, found in the all cells but highest in the hepatocytes. MCSC it is the most sensitive indicator for iron deficiency anemia. Measurement of dimorphic anemia. Dimorphic में एग्जामिनेशन में देयर विल बी पाइलर, CBC में हीमोग्लोबिन विल बी डिक्रीज्ड. आयरन जो प्रोफाइल होती है आयरन डिफिशियंसी का पिक्चर शो करेगी. सीरम विटामिन B12 सीरम फोलिक एसिड कराएंगे तो ये लो आएगा, वन और बोथ ऑफ देम. GPP में RBC बिकम जो है माइक्रो होगा या नॉर्मो होगा, एंड हाइपो और नॉर्मोक्रोमिक होगी. एंड बोन मैरो पिक्चर इज प्रेडोमिनेटली शोइंग मेगालोब्लास्टिक फीचर्स. ट्रीटमेंट में बहुत आयरन एंड फोलिक एसिड देंगे थेरेपेटिक डोजेज में. तो ओरल थेरेपी अगर करना है, टैबलेट फेरस सल्फेट होता है 300 मिलीग्राम 1 टैब TDS, पोस्टेबल देते हैं फॉर एटलीस्ट 100 days फॉलोइंग डिलीवरी, एंड कंटेन्स 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन. देन पैरेंटल थेरेपी में इंजेक्शन फेरस सुक्रोज देते हैं 300 मिलीग्राम IV और IM देते हैं 10 दिन तक. दैट कंटेन्स 20 मिलीग्राम पर ml एलिमेंटल आयरन. एंड आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो टैबलेट दे सकते हैं ऑफ 4 मिलीग्राम डेली. एंड या पैरेंटल मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन आते हैं वो चला सकते हैं. प्रीगाबलिन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH. तो PIH जो है इज डिफाइंड एज दी हाइपरटेंशन दैट डेवलप एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ग्रेविड स्टेट. इट इंक्लूड्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन and pre-eclampsia and eclampsia. Disorders में ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स में अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में देयर विल बी BP ऑफ मोर देन 140/90 mm of Hg फॉर फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी आफ्टर 20 weeks एंड विदाउट प्रोटीनूरिया. प्री एक्लेम्शिया में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अगर विद प्रोटीनूरिया है, अगर 0.3 ग्राम पर 24 आवर या फिर मोर देन 0.1 ग्राम पर लीटर है. एक्लेम्शिया में प्री एक्लेम्शिया विथ जो है ग्रैंड माल सीजर एंड और कोमा. सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया में न्यू ऑनसेट अगर प्रोटीनूरिया है इन फीमेल विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन. सीवियर प्रीक्लेम्शिया में क्राइटेरिया में BP इज मोर देन 160/110 mm Hg, सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, यूरिया लेस देन 400 ml per 24 hour, increased liver enzymes are there, cerebral or visual disturbances are there, persistent severe gastric pain, retinal hemorrhage, exudates or papilledema. Criteria includes IUGR, pulmonary edema and serum creatinine में more than 1.1 milligram per deciliter. Measurement of pre-eclampsia and pregnancy-induced hypertension. तो suspected female of pre-eclampsia
एंड हॉस्पिटलाइजेशन करो उसका, डे केयर और एडमिशन में, चेक फॉर रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, चेक बीपी एटलीस्ट 4 times इन अ डे, एंड सीवियर प्रीक्लेम्शिया विथ इंडिकेशंस ऑफ इमीडिएट डिलीवरी है, तो जो है देखना है व्हाट आर दी इमीडिएट डिलीवरी की इंडिकेशन। तो परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्रीक्लेम्शिया, pulmonary edema और hypoxia ऑफ लेस देन PO2 लेस देन 95%, हेपेटोसेलुलर इंजरी जो है बाय डिपेक्टिंग बाय 2 times इंक्रीज इन दी लिवर एंजाइम्स, और यूरिया है लेस देन 500 ml पर डे यूरिन है, एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल है, एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है विथ नॉन इंश्योरिंग फीटल स्टेटस, एंड एक्लेम्शिया है, एंड जो है अम्बिकल आर्टरी डॉपलर करेंगे तो उसमें जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम देखेंगे। देन देर इज़ अगर जो है बीपी ये सीवियर के इमीडिएट डिलीवरी के इंडिकेशंस नहीं है तो देखेंगे डायस्टोलिक बीपी 105 से ज़्यादा है क्या। अगर 105 से ज़्यादा है तो स्टार्ट कर देंगे एंटी हाइपरटेंसिव। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे फॉर मदर एंड फीटल वेलबींग, मदर के लिए CBC कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे अगर प्लेटलेट 1 लाख से कम आ रही है तो, सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन, LFT एंड LDH, 24-hour यूरिनरी प्रोटीन एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी फॉर maternal hemorrhage and papilledema, एंड फीटल वेलबींग असेसमेंट तो DFMC है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, CTG है, बायोफिजिकल प्रोफाइल है, USG कलर डॉपलर है। स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव में इंजेक्शन लेबेटालॉल है 10 to 20 मिलीग्राम IV एवरी 10 minutes अप टू 300 मिलीग्राम मैक्सिमम। इंजेक्शन हेड्रालाजीन है 5 मिलीग्राम IV एवरी 30 minutes एवरी 30 minutes अप टू 30 मिलीग्राम मैक्स, और इंजेक्शन निफेडिपिन दे सकते हैं 10 से 20 मिलीग्राम टैबलेट फॉर एवरी 30 minutes to 50 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर कंप्लीट कंट्रोल हो गया तो फिर देखेंगे ये प्रेगनेंसी प्री टर्म है कि टर्म पे है। अगर प्री टर्म प्रेगनेंसी है तो डिस्चार्ज कर देंगे मरीज को और एंटीनेटल क्लिनिक को आने के लिए बोलेंगे, एंड डे केयर क्लिनिक में आने के लिए बोलेंगे, एंड फिर लेटर विल प्लान फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। एंड टर्म जो है अगर टर्म है तो देखेंगे 34 से 37 वीक है कि मोर देन 37 वीक्स है। अगर 34-37 है तो हॉस्पिटल में ये स्टे रखेंगे टिल 37 वीक्स, 2 हफ्ता रोक लेंगे एंड प्लान डिलीवरी कराएंगे इसमें। एंड अगर मोर देन 37 वीक्स है तो डायरेक्टली विल गो फॉर प्लान डिलीवरी। एंड इफ़ BP इज़ ऑल्सो परसिस्टेंटली हाई, अगर ये एंटी हाइपरटेंसिव चलाने में भी कंट्रोल नहीं होगा तो ट्राई टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल 37 वीक्स और एटलीस्ट 34 वीक्स, उसके बाद डिलीवरी प्लान करेंगे। एंड परसिस्टिंग राइजिंग BP है अगर एंटी हाइपरटेंसिव चलाने के बाद टू सीवियर लेवल डिस्पाइट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, और डाइट डिलीवरी कराना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन। इफ़ तो उसमें जो है कपल काउंसलिंग करा के रखना है, ट्रांसफ़र करना है टर्शरी केयर सेंटर में, प्रोफाइलेक्टिव मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, स्टेरॉइड थेरेपी देनी है अगर लेस देन 34 वीक्स है तो, एंड एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देनी है। जब डिलीवरी प्लान करेंगे तो ये तो इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं, CN सेक्शन कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल के थ्रू, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन के थ्रू, और CN सेक्शन इलेक्टिव कर सकते हैं। पोस्टमार्टम मॉनिटरिंग करेंगे इस पेशेंट्स में। ठीक है, हो गया मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लेम्शिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देन प्रीक्लेम्शिया के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो प्राइमरी ग्रेविडा है, लाइक यंग और एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू विलाई अगर होता है तो उसमें केस में हाई रिस्क है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन या प्रीक्लेम्शिया है, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज आर देयर लाइक हाइपर प्लेसेंटोसिस, दैट इज एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ कोरियोनिक विलाई। मदर प्रेगनेंसी में, ट्विंस में, डायबिटीज़ में होता है हाइपर प्लेसेंटोसिस। प्लेसेंटल इश्चीमिया हो गया, ओबेसिटी है लाइक PMI मोर देन 35 है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। परसिस्टेंट वेस्कुलर डिजीजेस हैं लाइक एसेंशियल हाइपरटेंशन,
chronic renal disease, coarctation of aorta, endocrine disorders like diabetes mellitus, pheochromocytoma, thyrotoxicosis, CTDs है, connective tissue disorders हैं। इसके अलावा न्यू पैटर्निटी अगर हुई है, प्रेगनेंसी आफ्टर ART है, या थ्रोम्बोफिलियाज हैं लाइक ऑटोइम्यून थ्रोम्बोफिलिया, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया, प्रोटीन C डिफिशियंसी, प्रोटीनस डिफिशियंसी, एंटीथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, हाइपर होमोसिस्टिन्यूरिया, फैक्टर 5 ब्लड म्यूटेशन एंड प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशंस। अलार्मिंग सिम्टम्स में जो है हेडेक है लाइक ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिक्रीजिंग इन आउटपुट ऑफ लेस देन 400 ml per day, epigastric pain which is associated with vomiting, eye symptoms due to retinal infarction, vasogenic edema of occipital lobe, retinal detachment. These eye symptoms can cause blurring, scotomata and diminution of vision, complete blindness, and vision usually regained 4 to 6 weeks following the डिलीवरी। साइंस में एबनॉर्मल वेट गेन हो सकता है मोर देन 4 LB per week इन लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। राइज इन ब्लड प्रेशर हो सकता है इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फर्स्ट फॉलोड बाय द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एडिमा बायलैटरल पीडल एडिमा हो सकता है इन मॉर्निंग, and pulmonary edema due to leaky capillaries and low oncotic pressure, and per abdomen examination evidence of chronic placental insufficiency and scanty liquor, fetal growth retardation, and there is no manifestation of chronic cardiovascular or renal pathology. Management of eclampsia in the primary, so at 37 weeks of gestation, call for the extra help, control of seizures, injection magnesium sulfate 4 to 6 gram IV start slowly over 15 to 20 minutes, followed by 1 to 2 gram per hour IV infusion. To put patient in left lateral recombinant position, prevent करना है टंग बाइट, मेंटेन करना है ओरल एयरवे, O2 inhalation, non-breather mask 10 liter per minute, and commence IV lines 1 to 2 wide bore cannulas, Fleece catheter with Eurometer, monitor the O2 saturation of SpO2 and 95%, मॉनिटर करना है वाइटल्स एंड फीटल स्टेटस एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन लैबेटालोल एंड हाइड्रोलाजीन, एंड फ्लूइड्स में क्रिस्टलॉइड फ्लूइड में सलाइन एंड क्लोराइड फ्लूइड्स में, एंड हीमोग्लोबिन और ब्लड क्लोराइड में देखना है अराउंड 125 ml per hour। सक्शन में ओरोफेरिंजियल सक्शन करना है, डाययूरेटिक्स में पल्मोनरी एडिमा चेक करना है, इन्वेस्टिगेशन टू ऑर्गेनाइज ब्लड में CBC, ST, LD, LDH, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिनल एनालिसिस में प्रोटीन्स देखने हैं, प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मैनेजमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद एंड फीटल स्टेटस, एंड नॉट इन लेबर, और अगर इन लेबर है दोनों सिनेरियो में, इफ पेशेंट इज़ नॉट इन लेबर्स तो देखना है फिट्स कंट्रोल है कि नहीं। फिट अगर कंट्रोल है तो फीटस का देखना है टर्म है, प्री टर्म है कि फीटस डेड है। अगर टर्म है तो डिलीवरी करानी है नॉर्मल लेवल या सीजन सेक्शन, प्री टर्म है तो स्टेरॉइड थेरेपी दीजिए, उसके बाद जो है सीजन सेक्शन के लिए जाइए। डेड है तो विल गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, and if fetus are not controlled and non reassuring fetus status है तो एटलीस्ट सीजन सेक्शन के लिए प्लान करिए। अगर पेशेंट इज इन लेबर विच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द ऑक्सीटोसिन विद द फोर्सेप्स इंड्यूस्ड डिलीवरी करा सकते हैं। एंड जो है सीजन सेक्शन का कोई ऑप्स इंडिकेशन डायरेक्टली LSCS के लिए प्लान करिए।
एंड आफ्टर दी डिलीवरी न्यूनेटल रिसस्टेशन देख करना है। मैग्नीशियम सल्फेट कंटिन्यू रहेगा फॉर अनदर 24 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी और द लास्ट सीजर। CT एंड MRI इन दी पोस्टमार्टम पीरियड करना है फॉर दी केसेस विद दी न्यूरोलॉजिकल इंजरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करना है। उसमें ऑप्शन गायनी, कार्डियोलॉजिस्ट एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, इन सब को देखना है। पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में डिफाइन करना मेनोपॉज। तो मेनोपॉज मीन्स परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ due to the loss of ovarian follicular activity. It is the point of time when last and final menstruation occurs. Sign and symptoms जो है ऑफ मेनोपॉज क्या है? तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस में शॉर्टर साइकिल हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, एंड वैसोमोटर सिम्टम्स हैं लाइक हॉट फ्लशेस, अपर बॉडी स्वेटिंग, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप्स है। साइकोलॉजिकल चेंजेस है लाइक इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, पुअर मेमोरी है, डिप्रेशन है। सेक्सुअल डिसफंक्शन है लाइक वैजिनल ड्राइनेस, डिस्पेरिमिया, डिक्रीज्ड लिबिडो। यूरिनरी सिम्टम्स हैं लाइक इनकंटिनेंस, अर्जेंसी एंड डिस्यूरिया। अदर्स हैं लाइक ब्लैक एक्स एंड जॉइंट एक्स हैं, वेट गेन है एंड पाल्पिटेशन है। हाउ डज मेनोपॉज इन्फ्लुएंस करना है बोन मैरो डेंसिटी को? एस्ट्रोजन प्रिवेंट्स द ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट इंक्रीजेस द बोन मैरो मिनरलाइजेशन बाय सेवरल मैकेनिज्म। इनहिबिट करना है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को और इनहिबिट करना रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन-1 बाय मोनोसाइट्स। इंक्रीज करना है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। स्टिमुलेट करना है कैल्सिटोनिन सिक्रीशन फ्रॉम द सी सेल्स ऑफ द थायराइड। इंक्रीज करना है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी को। इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, इंक्रीज करना है ऑस्टियोपोरोसिस बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एज मीडिएटेड बाय द रैंक लिगेंड पाथवे। रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा भी रखना है। रैंक और रैंक लाइगेंड एंड ऑस्टियोप्रोटीग्रीन्स जो है करना है आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस पाथवे। एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के इंडिकेशंस होते हैं। इट कैन बी रिलीफ ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, रिलीफ ऑफ वैसोमोटर सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस to maintain the quality of life in menopausal years. Special cases to whom hypertension should be prescribed. Premature ovarian failure है, gonadal dysgenesis है, सर्जिकल और रेडिएशनल मेनोपॉज है। बेनिफिट ऑफ हार्मोनल थेरेपी, इम्प्रूवमेंट ऑफ वैसोमोटर सिम्टम्स हैं ऑफ 70 to 80%। improvement of urogenital atrophy, increase in the bone marrow density of 2 to 5%, and decrease in the risk of vertebral and hip fracture of 25 to 50%, reduction in the colorectal cancer of around 20%, and possible cardioprotection करना है। commonly used preparation combined HRT, commonly used combined hormone replacement therapy में there can be estrogen, there can be progesterone, conjugated estrogen around 0.625 to 1.25 milligram per day, medroxyprogesterone acetate 1.5 से 5 milligram per day। controversies regarding the hormone replacement therapy, demerit of hormone replacement therapy like high risk endometrial carcinoma, breast carcinoma, coronary heart disease, venous thromboembolism, rise of cholesterol। contraindication of hormone replacement therapy and CA breast है, known suspected history of the past cancer है, undiagnosed genital tract bleeding है, estrogen dependent neoplasm in the body,
एंड हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, एक्टिव डीवीटी है, एक्टिव लिवर डिजीज़ है, प्रायर कोलेस्टेटिक जॉइंडिस है, प्रायर एंडोमेट्रियोसिस है, जीबी डिजीजेज हैं, करंट consensus on prescribing hormone replacement therapy. As per the ACOG 2008, hormone therapy should be used with lowest effective dose and for the shortest period of time as possible. And women with the intact uterus, low dose hormone therapy देनी है and is found to have effectively control the vasomotor symptoms. Conjugated estrogen में 0.3 मिलीग्राम है एंड मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन स्टेट में 1.5 मिलीग्राम है. इन वुमेन विथ हिस्टेरेक्टोमी दैट इज एस्ट्रोजन ओनली पिल्स लेनी है. ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशेस इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, हार्मोन थेरेपी इंडिकेशंस में एस्ट्रोजन थेरेपी है मोस्ट इफेक्टिव एंड फीमेल्स इन विच यूट्रस इज रिमूव्ड, and combined estrogen of progestin therapy, uterine intact, progestin therapy of estrogen contraindication, and tibolone is a selective tissue estrogen activity regulator. It has estrogenic, progesterogenic, androgenic properties. Non-hormonal therapy, clonidine, SSRI, SNRI, venlafaxine, dopamine agonist blocker, verilipride, and metazepine, trazodone, belgrade, belargal. That is a combination of ergotamines, phenobarbital, and belladonna. Measures for the perimenopausal females to safeguard against the osteoporosis. तो प्रिवेंशन में रेगुलर वेट बेयरिंग करनी है एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, सनलाइट एक्सपोजर, अर्ली प्रेगनेंसी, कैल्शियम 120 मिलीग्राम पर डे, विटामिन डी 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे. ट्रीटमेंट में इंडिकेशन कब है, जब फ्रैक्चर हो, वर्टिब्रल या हिप फ्रैक्चर हो जाए तब इंडिकेशन स्टार्ट करना है. टी स्कोर जो है लेस देन -2.5 है for femoral neck or spine, and T score is around 1.02 -2.5 है, प्लस 10 ईयर हिप फ्रैक्चर रिस्क इज मोर देन 3% अगर है, या 10 ईयर मेजर ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ अराउंड 20% है, तब स्टार्ट करेंगे. ड्रग्स जो देते हैं उसमें बिस्फोनेट्स देते हैं, लाइक इंजेक्शन जोलिंड्रेनेट, IV इन्फ्यूज़न 5 मिलीग्राम वंस इन ईयर. सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर देंगे रिलॉक्सिफेन. रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन देंगे टेरीपैराटाइड. एंटी रैंक लाइगेंड एंटीबॉडी देंगे दैट इज डेनासुमैब. स्ट्रोंशियम रेनिलेट एंड कैल्शिटोनिन, स्लो रिलीजिंग सोडियम फ्लोराइड, सारी चीज़ें देंगे. These are the complete course of the obs and gynae. Hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर टाइमली कंटेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.